landscape. To guide us through this fascinating discussion, it is my pleasure to invite our distinguished panelists on the stage, Mr. Abhilash Khandekar, Mr. Sanjay Kumar Shukla, Ms. Bharti Chaturvedi, and our moderator for the evening, Mr. R. Srinivasa Murthy. Please join me in giving them a huge round of applause. And now, the moment we all have been waiting for, the official launch of Birds of Bhopal. I would And now, the moment we all have been waiting for, the official launch of Birds of Bhopal. The official Central India launch of Birds of Bhopal. Let us unveil this masterpiece that beautifully bridges the nature and conservation. This isn't just any launch, it's your chance to be among the first one to own a copy of this incredible work, and here's the cherry on top. You can get your copy signed by the author right after the session. Birds of Bhopal, co-authored by Mr. Abhilash Khandekar and Dr. Satish Pandey, published by the Nature Volunteers Society. This stunning coffee table book is the first comprehensive documentation of Bhopal's avian diversity, featuring 312 species of migratory and resident birds, captured beautifully by amateur photographers, and it is a visual and intellectual delight. Now let us dive into this engaging session discussion that promises to deepen our appreciation of the feathered wonder of Bhopal and beyond. This thought-provoking discussion is sponsored by CRF, Chintan Research Foundation, and we are honored to have an exceptional panel of experts to lead us through this conversation. A veteran journalist with over 42 years of experience in print and electronic media, former editor of Dainik Bhaskar and head of Hindustan Times, we have Abhilash Khandekar ji, an avid environmentalist and co-founder of the Nature Volunteers, the author of 5 books including Birds of Bhopal, which reflects his deep passion for bird life, former president of MP Cricket Association and anchor of the popular environmental program Astitva on Lok Sabha TV. Next we have the Principal Secretary to the Chief Minister of Madhya Pradesh, a 1994 batch IAS officer, known for his leadership and administrative acumen in managing key state initiatives. His vision for integrating biodiversity to urban planning will be a key highlight of this discussion. Please welcome Mr. Sanjay Kumar Shukla ji as well. Bharti Chaturvedi ji, a founder of Chintan, an NGO focusing on waste management, air pollution and climate change, a policy advisor who has served as various government bodies including Delhi Pollution Control Committee, author of Finding Delhi, Loss and Renewal in the Megacity, and host of the podcast The Chintan Chats. Our moderator, a renowned conservationist and retired Indian Forest Service officer, former field director of Panna Tiger Reserve, where he spearheaded the globally acclaimed Panna Tiger Reintroduction Project. This session delves in the critical role of biodiversity in urban spaces, the challenges posted by rapid urbanization. I would now hand over the mic to the panelists. Please have a huge round of applause for everyone. Thank you. I think, Murthy ji, you would be, I want to really start by really thanking everyone who's put this book together. And this is not just कि एक किताब है, knowledge होगी, अपनी knowledge बांट रहे हैं. That's not the point. The point is that if we want a quality of life, and we all want a quality of life, then what is the quality of life as India urbanizes? And, you know, in the next 15, 20 years, most Indians will be in some form of an urban landscape, so to say. And we don't want to necessarily be in a Gurgaon landscape when we can actually be
in a landscape which protects us from heat, where there are wetlands, where we can actually do nature-based solutions by conservation. That alone is a nature-based solution. And one of the greatest indicators that we have on nature-based solutions is really bird species. I mean, of course, there are several other species, but we can't see them. So the more citizens get interested in bird watching, जितने birds देखेंगे, utne I feel we have records. Now we have something called eBird, where we all put it, and it helps us understand the trends. And I feel for that reason, this book is not just a book for nature lovers. This book is about Birds of Bhopal, is about how the people of Bhopal, and in fact beyond, because we just don't live in one city, in the district, in the state and beyond, what will be the quality of our life. Because where you have an ecoscape and a landscape for birds, you also have a greater potential for a higher quality of life, whether it's the quality of air, whether you have recharged groundwater, or whether you just have cooler temperatures due to an ecosystem with shrubs or grasslands or wetlands or trees, jo bhi hoye, that is it. And I just brought along this book also that I know Khandekar Saab basically reviewed and read. It is also about the history of birds in Delhi, and this also helps us understand where we have done well and where we have gone wrong, because the author started birding in the 1970s in Delhi. So I think in many ways it tells us that Delhi ka jo development hai, it's many landscapes have disappeared, but many birds have become more popular. And I wish that this book goes even beyond and helps us not to reach those kinds of things that we have done in many other cities: cut old trees, dry up wetlands, declare a scrub area as a wasteland. We've made all these mistakes, and we know it. And we often know it when bird populations such as the Neelkant and sparrow, when they decline. So this book, I think, is about how shall we remain a resilient, climate resilient population. I think that is the contribution really. Many, many congratulations. So congratulations to Khandekar Saab, Satish Pandey Saab and Pramod ji for bringing out a very beautiful as well as more authentic. Congratulations to Abhilash ji, Satish ji, and then Pramod ji for bringing out this very, very relevant and timely science-based and baseline for Bhopal birds. And then we are making this particular book and the information that is available to really relate ourselves, as ma'am has very clearly said, about our key life. Basically, if we don't consider other life as also as the present day trend with respect to Homo sapiens, even if we consider our life quality needs to be better, so it's very, very essential to understand the basics of it. यहाँ पे बहुत लोग आप लोग भोपाल से ही हैं, कितने लोग आप लोग अकेडमी में गए होंगे, प्रशासन अकादमी में? बहुत लोग गए हैं. तो I lived there fortunately for 4.5 years, and then भोपाल की सारे जो टेम्परेचर है वहाँ से वहाँ की टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री अंतर होता है. The basic issue is कि total area is around say 65 acres or something. 60% of the area is covered with trees. So ambient temperature अपने आप नीचे आ जाता है. And second thing, nowadays it is a era of climate change. अभी मतलब जनवरी भी ख़त्म नहीं हुआ है. We are मतलब seeing the burnt of the summer on the outside. So in such a situation, कि climate change already happened. If we are going to, that is a global issue. But हम जब तक local actions नहीं लेंगे, the things will not be good for the people who live locally. What I mean to say, actions that is done at the local level are going to cripple you more in the terms of climate change.
क्लाइमेट चेंज तो रहेगा ही. क्लाइमेट चेंज में क्या होगा? फर्स्ट थिंग टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेंगे, एंड सेकेंड थिंग कि जब रेन्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे. If our local conditions are in a better way, we will be able to cope up them in a better way. And another most important issue, topic का बहुत ही सामायिक टाइटल है. I don't think there is no problem with my speaking both the languages. कि urban biodiversity and birds, as ma'am has very clearly said, we have life around which will indicate ये good condition or bad condition of a particular area or ecosystem. So similarly, in 1901, before the start of this 20th century, the urban population was only 11%. Now it is already touched 36%. Every year it is growing by 1%. So, keep for 40% of the population, do we want to make a better climate, better air, better water, better land, what should I say, conditions? So, if we consider Delhi as a landmark for yourself, ki how many people would like to willingly live in Delhi? That's a big issue, because you don't get a pure air there. So, in such a situation, the things should not go wrong. And then second thing, when we say urban, it is an biggest congregations of present day communities. Biodiversity means life. Unless we have good amount of life in and around our own living areas, our quality will go down. And then people say, ki how to save the biodiversity? Biodiversity can be saved by taking care of the land, water and air. Only these three things. We can go into details and discuss them, may make PhDs around it, but what actually we are contributing to these issues on our own, that has to be a very important issue. In this particular perspective, Bhopal is another good example to say ki one thing recently people have come together and stopped felling off more than 29,000 trees here in Bhopal. That's a very big thing, big good thing that happened. Big claps to all the Bhopal people. Earlier I used to praise the people from Indore. They have stopped the denotification of Rala Mandal, and they have recently declared 2 of their water bodies as Ramsar sites. So that's another important issue. So one important issue I would like to flag here, that the biodiversity point of view here, we have a tiger in the capital, quite a big thing, and then we have vultures here. Of course, Bhoj wetland is here, and nearby so many wetlands are there. So good amount of birds population come here, and then recently over last big movement has occurred over last say 15 years or so. We have again brought back the house sparrow here. So these are some of the good indicators where the biodiversity is moving in the right direction, but at the same time, the multiscapes and then landscape that's getting changed is going to really need to be a cause of concern for everybody. So from here, I request others to take on. Thank you. Thank you. So we have both made our propositions. Before we move to you, uske pehle couple of questions from on this book, so that then sametते हुए we can ask you. So we will share this mic. कोई problem नहीं होए. एक यहाँ भी है शायद. हाँ, तो we have mics की कमी नहीं है. तो Abhilash साहब, why did you bring out this coffee table book? Especially a coffee table book. So, as my friends Mr. Murthy, who started birding with me in Indore many years ago, and Mr. Sanjay Shukla, who was Indore Municipal Commissioner many years ago, and the lake which we wanted to save, both had their contributions. So I am really happy that they are the panelists here. And the Sirpur Lake, which Mr. Murthy Saab is talking about, was declared as Ramsar site as late as in 2022. But during that period, all my hair have gone grey. But when we started, we had published a brochure in which Sanjay Shukla's photo appears. He is using binoculars to see some birds in Sirpur Lake.
So the idea of bringing out a document on birds in Bhopal struck us when we first 5 years ago brought out a book on birds of Indore. That went well, it was well responded, and by the people, not only buyers, but that the intention of creating an awareness in the society for birds. And we did not really bother that, well, that was our first and last book that way. We had also brought out vultures of Panna because Murthy Sahab was organizing each year the vulture count there. And we thought that Ken Betwa will finally remove the vulture habitat. So we documented it and got it released with Shivraj Singh Chauhan as Chief Minister in the Wildlife Board meeting. And soon after, in the same meeting, the issue came up and Ranjit Singh Sahab, who has written the foreword for this, he opposed the Ken Betwa, and then Shivraj Singh ji said कि यार तुमने हमसे यही किताब रिलीज करा ली. मैंने कहा साहब इसलिए करा ली कि vultures गायब होने वाले. So that was our second book, but this is third book that way. So Indore book gave us the, I mean, Bharti's questions response. Indore book gave us some confidence that bird books can be used as vehicles for generating awareness, curiosity, and then finally conservation. So when we got working on this book, we tried to see around this book, as particularly which you are saying, Sudhir Vyas, he is a Foreign Service Officer of 1977 batch. I got this book and I bought it, and I saw when this book was being finalized, or I think it was already out before this came. The idea of bringing out a coffee table book was very clear in my mind, that I move in a society in Bhopal or Indore or in Delhi, and most of my friends are, they know that I work in the field of environment, but they don't bother really about, the environment per se. So many architects, many builders, many industrialists, I made them friendly requests कि ये किताब आपको खरीदना चाहिए. उसके पहले ही कर लिया था ये, और उसी के लिए हमने इतनी कॉस्टली बुक जो 3,500 रुपए की है, and I must thank most of my friends, industrialists, bureaucrats and others who bought this book in Bhopal. And my idea was that I used to visit their houses, I used to get involved in animated discussions on various issues, but not on environment and certainly not on birds. So now this coffee table book is being seen in many drawing rooms, and people now, those who bought, those who got a gift from me, they have started talking about birds, and that is what I think is my achievement in limited sense, that the those who were not yesterday, let me tell you, Sanjay ji, yesterday in this very chair, Anuradha Jain was sitting, wife of my friend Anil Jain, who was Coal Secretary. She has written a book on Delhi Journal. And she said very interesting thing. She said कि मैं दिल्ली में जब भी ट्रैफिक में मैं जाती थी मेरे हस्बैंड के साथ में, अनिल जैन was a senior IAS officer in Government of India, he worked in MOFCC. तो वो ट्रैफिक जैम में गाड़ियाँ फंसती थी, तो अनिल, who was also here yesterday, वो मेरे हस्बैंड बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और मैं उनको कहती थी कि गाड़ी खड़ी है, कांच में से बाहर तो देखो, बहुत अच्छी चीज़ें दिखेंगी. तो चिड़ियाएँ दिखाना शुरू करी हमने उनको, और इस तरीके से चीज़ें. सो हमारे पास चिड़ियाएँ या सूरज या चंद्रमा या आकाश या पेड़ पौधे देखने का समय नहीं है हमारे पास. तो अब वो समय नहीं होने के कारण अब, लेकिन कल ही मेरे को किसी ने कहा कि वो चिड़िया हमने बहुत दिनों बाद देखी. सो इस तरीके की जो किताबें, आज सुबह मेरा सेशन था नटेश साहब के साथ, ही इज हियर, ए ग्रेट बॉटनिस्ट, ही हैज रिटन ए ब्यूटीफुल बुक, आइकॉनिक ट्रीज ऑफ इंडिया, 75 आइकॉनिक ट्रीज ऑफ इंडिया, जिसमें 2 कटनी की पेड़ है. आप मध्य प्रदेश के हो इसलिए मैं कह रहा हूँ शुक्ला जी. सो किताबों का जो महत्व है और किताबों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल है, उसमें मुझे लगता है कि बर्ड्स ऑफ भोपाल एज ए सीक्वल टू बर्ड्स ऑफ इंदौर हैज सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट. एंड आप जैसे रंजीत सिंह साहब ने इसमें लिखा है, आई वुड लाइक टू रीड जस्ट अ पैरा. This book should encourage the start of field-oriented applied research to help answer some questions. Rivers provide obstacles to the distribution of mammals, and the Narmada has posed a barrier to the spread of Indian gore northwards. But why should it have posed a barrier to the spread of grey jungle fowl from the Satpuras to the Vindhyas across the river? Is the drastic decline in ground-laying birds
the quails, the sand grouse, and painted partridge, among others, entirely due to demographic factors or a combination of causes. Which means that the birds should not be going down in their numbers and species. They should not get the threats from the speed of urbanization, but that is happening. Yesterday we were talking about in this very room about the disappearance of Goraiya from Delhi, and Goraiya was declared as state bird of Delhi in 2011 thanks to Asad Rahmani and many others. तो हमारे यहाँ का आज मैं ये पहन के आया हूँ, तो ये कैमरा इस पे दिखा रहा है, तो ये दिस इज माय स्टेट बर्ड पैराडाइज फ्लाई कैचर. इसके डिसीजन में भी रंजीत सिंह साहब और बुश साहब इन सब लोगों ने इसमें रोल अदा किया था. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक थ्रू दिस बुक इज So I would have asked this question in the end of this. This is the paradise flycatcher. This is a state bird of Madhya Pradesh, and Goraiya is the state bird of Delhi. And the cover page on which we show the Saras is the state bird of UP. But we have taken Saras on this front page because there are large number of Saras birds found in the Ramsar site of Upper Lake. So that was the small but very lengthy reply to your question, why this coffee table book. But the idea was to generate awareness among those who don't talk about birds or biodiversity. They are like you and me, they live life, they lead businesses, but fact remains they need also to be awakened about what you said, that, or Murthy Sahab also said. Without trees, without tigers, without water, wetlands, our life will be very, very difficult. You spoke about the Academy of Administration in Bhopal. We live in Charimli or other places, so where there are trees, naturally the temperature comes down, but yet people don't understand. They want to go in for air-conditioned life. Bharti ji. Thank you. तो अब मैं एक क्वेश्चन दूसरी ओर से पूछती हूँ. दिस इज़ फॉर, ऑफ कोर्स दिस इज़ शुक्ला जी के लिए. यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर. You are in charge of urban. Now, cities have a certain imperative. Of course, I acknowledge that I seem to be the only person not part of this pro-lake, pro-bird conspiracy on this panel. Everyone has undertaken various things together, but what is your perspective on birds and biodiversities in the urban context? What are your challenges? What are your thoughts? So, मैं शुरू करता हूँ इंदौर से ही. मैं इंदौर में म्यूनिसिपल कमिश्नर था 1999 में, और बहुत ही यंग, ऑलमोस्ट लाइक ए कॉलेज पास आउट. अभिलाष जी से वहीं जान पहचान हुई, एंड ही इंट्रोड्यूस अस टू सिरपुर लेक. अब लंबी बात नहीं करूँगा, पर हम लोग उसके शुरुआती जो सिपाही थे वो हैं. फिर वहाँ बहुत सारे ऑफिसर आए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर आए, और सिरपुर आज इंडिया में जो 2 साइट सेलेक्ट हुए हैं अभी, उसमें उदयपुर एंड सिरपुर, इंदौर. उसके बाद मैं 2004-5-6 में भोपाल में रहा कलेक्टर के रूप में. इसके अलावा 2 ट्राइबल जिलों में मैं काम किया हूँ, मंडला और झाबुआ. तो वहाँ भी मतलब आदिवासी और जंगल को बहुत करीब से देखा हूँ. अभी मैं लेकिन नगरीय विकास का प्रमुख सचिव हूँ. तो उस नाते मैं 1-2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपके ध्यान में लाना चाहूँगा. कुछ आंकड़े हैं जो आप याद रखेंगे, बहुत सरल आंकड़े हैं. हमारे देश में सभी शहरों की जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये पूरे देश के क्षेत्रफल का 2% से थोड़ा सा कम है, 0.25% मान लीजिए इसको. मध्य प्रदेश में ये जो रेशियो है ये 1.25 से 1.5% के बीच में है. हमारा क्षेत्रफल लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर. मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ ताकि याद रखना आसान हो. जो लोग बहुत मतलब माइन्यूट चीज़ों में जाते हैं, मैं डेसिमल पॉइंट में भी बता सकता हूँ. तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और 1.25 से 1.5% शहरों का टोटल एरिया है. तो मोटा मोटा सिद्धांत है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख की आबादी लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर में रहती है. तो 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 होता है. तो मान लीजिए 14-15 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई का अगर क्षेत्रफल हुआ तो उसमें 10 लाख लोग रहते हैं. अधिकांश शहर हमारे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आबादी के हैं, 15-16 शहरों को छोड़ दीजिए तो.
अब अगर हम सामान्य व्यक्ति, अगर हम दुकान पे बार्गेन करते हैं, कभी कोई सामान खरीदते हैं, कोई हम फ्लैट या दुकान खरीदते हैं, तो 1-2% की वैल्यू क्या होती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। बच्चे जब मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो 1 या 2% को हम लोग इग्नोर कर देते हैं जब कोई इंजीनियरिंग डिजाइन करते हैं, कोई भी और कैलकुलेशन करते हैं तो। लेकिन शहर के लोगों ने इतना उधम मचा रखा है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस 1-1.5-2% में रहने वाले, जो लगभग अब 35-40% आबादी हो गई है, इतना पोल्यूशन, इतना नॉइज़ और इतना लाइट, हमें पता नहीं है कि हमारे इतने लाइट से जो पूरा जो बर्ड्स और इंसेक्ट का वर्ल्ड है वो कितना परेशान है। अगर वो आपस में बात करते होंगे तो यही कहते होंगे कि ये क्लेश करने वाले लोग कौन हैं, ये मतलब हमारे बारे में। तो हम लोगों ने, अच्छा मज़ेदार बात क्या है कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए 10-15 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप गूगल मैप या गूगल अर्थ को देखेंगे तो जब भी आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको शहर ऐसे डॉट के रूप में दिखेंगे, बाकी पूरा इलाका जंगल, खेत, नदियाँ, तालाब, खलिहान, पहाड़ों से बना हुआ है। तो इसके बीच में जो शहर हैं वो डॉट डॉट और मोस्टली वाइट रंग से दिखते हैं वो। तो जो जितना बड़ा वाइट पैच दिखेगा वो उतना बड़ा शहर है। जैसे दिल्ली और एनसीआर आपको बहुत बड़ा वाइट पैच दिखेगा, और कोई छोटा शहर गुना या रतलाम या रीवा आपको छोटा सा वाइट पैच दिखेगा एक डॉट की तरह से। तो फिर हम इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता इसलिए कर रहे हैं कि ये जो उनके स्पेक्ट्रम में जो हम छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये हम लोगों ने काफ़ी मतलब हंगामा किया हुआ है कि हम लोग पूरे जो माने स्पीसीज़ की इतनी लाखों वैरायटी में हम एक वैरायटी हैं और हमने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि, और हम आज जो लोग बैठे हैं हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में लीडर्स हैं और हम मतलब हमारे ओपिनियंस मैटर करते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो हम सब लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम पोल्यूशन और एयर नॉइज़ और केमिकल पोल्यूशन सबको अगर थोड़ा हम ठीक करें तो हमारे शहर जो नुकसान कर रहे हैं उसमें कमी हो जाएगी, पहला। दूसरी बात जो बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि शहरों के अंदर अभी भी एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो हम कॉलोनियों में छोटे मोटे पार्क बनाते हैं, हमें कई बार लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि इससे हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा उद्देश्य तब पूरा होगा जब सारे वाटर बॉडी ठीक से मेंटेन हो, और जो खंडहर हैं, जैसे कोई पुराने महल वाले कोई इलाके हैं और कुछ पुराने तालाब हैं, उनके आसपास कुछ पेड़ों के झुरमुट होते हैं, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बहुत पुराने केंद्र हैं जो जीनोम और जो पूरा वर्ल्ड है बायोडाइवर्सिटी का, उसको प्रिजर्व करने का। तो शहरों के अंदर हम अर्बनाइजेशन करें, लेकिन उसमें सभी एरिया को जो हम बदलते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो कि मैं अपने, मेरा जितना प्रभाव है उसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ करने का, कि अर्बनाइजेशन में हम लाइट, नॉइज़ और पोल्यूशन को कंट्रोल करें जितना हो सके। और दूसरा, जो शहरों में और शहरों के आसपास जो पुराने नेचुरल हैबिटाट हैं, जिसमें तालाब और लेक एक श्रेणी हुए, ऐसे कई श्रेणियाँ होती हैं, जो मैंग्रोव्स हैं, पेड़ों के झुरमुट हैं, छोटे छोटे जंगल हैं, और पुराने खंडर हैं, किले हैं, उनमें जो पेड़ों के जो झुरमुट हैं, ये सबसे बड़े केंद्र होते हैं जहाँ पे बर्ड्स काफ़ी रहते हैं, इंसेक्ट्स बहुत सारे रहते हैं, तितलियाँ बहुत सारी रहती हैं, और उन सबको बचाने की ज़रूरत है। तो जितने भी थॉट लीडर्स हैं, चाहे वो अर्बन प्लानर्स हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, सबको इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू शुक्ला साहब। एक्चुअली इस प्रकार की डिस्कशंस लगातार होती रहना चाहिए। वो इसलिए है कि फाइनली थिंग्स शुड रीच द डिसीजन मेकर्स। उसमें संजय शुक्ला साहब भी एक हैं, कई सारे यंगर जनरेशन हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे डिसीजन मेकिंग लेवल पे। लेकिन आज का जो, कल का जो बजट जो रिलीज़ हुआ है, उसमें एक्वाटिक सिस्टम्स को पूरे भारत का मतलब प्रबंधन के लिए 30 करोड़ रुपए का पैसा मिला हुआ है। तो नो वे इट इज़ गोइंग टू रियली मीट आउट द रिक्वायरमेंट। एंड इफ़ वी सी मतलब वेरियस एग्जाम्पल्स दैट अराउंड, कि हुसैन सागर लेक है भोपाल का, सॉरी हैदराबाद का, वो पार्टेबल नहीं है। मध्य प्रदेश में सागर है, वो पार्टेबल नहीं है। लकीली अपनी जो बोस्ताल है पार्टेबल है, बट स्टिल उसके साथ भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो जहाँ पर भी अर्बन एरियाज हैं,
वहाँ पे अर्बन एरियाज़ की जो लैंडस्केप्स हैं और वहाँ की एक्वाटिक बॉडीज़ हैं, इसे जब तक हम लोग संजो के नहीं रखेंगे, if not for anybody else, only for the benefit of the human life and quality of the human life, that becomes a very big essential thing. And then I request from this forum, through Sanjay Shukla ji and others, to seriously to make a note of this. क्योंकि अब जैसा कि मेरा उम्र है, खांडेकर साहब का मेंबर, हम लोग 60 प्लस में चले गए, we may live for another 15-20 years. अब लड़की बैठी हुई है, इनकी ये मेरे उम्र तक आते आते इनका मतलब देश और इसकी शहर कैसी होगी. एंड देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यू कि कितने भी शहर हैं देश के, सबके सब पानी का जो मतलब आप लोगों का पीने का पानी नदी से आ रहा है. कि नदी तो कोई कल्पतरु तो नहीं रहा, क्योंकि व्हेन वी कंसिडर बायोडाइवर्सिटी ये सारे इश्यूज उसमें मतलब इंक्लूडेड है. जैसे कि मैंने पहले बताया, बायोडाइवर्सिटी के लिए आपको बायोडाइवर्सिटी में ना लाइफ है और कुछ नहीं है. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम योर कोरोना, जो हाफ लाइफ हाफ डेड है. जब आपके मेरे ऊपर आ जाते हैं पूरे लाइफ में तांडव करता है, जब अपने से बाहर हो गया तो कुछ नहीं है. तो लाइफ वहाँ से लेके इफ़ यू कंसिडर ह्यूमन एज ए टॉप मोस्ट मतलब बायोडाइवर्सिटी एग्जाम्पल, तो हमारा तक सारे लाइफ को वन हैज़ टू टेक केयर. एंड लाइफ इट्स ओनली लाइफ. एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ का भोजन कौन है? दूसरी लाइफ है. इज ए बिग मतलब रियलिटी. बट हम चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है. जब तक अपनी आसपास की लैंडस्केप्स को और अपनी एक्वाटिक सिस्टम्स को हम संजो के नहीं रखेंगे, सस्टेनेबली उसको मैनेज नहीं करेंगे, पीने का पानी के लिए प्रॉब्लम्स होंगे. क्या नर्मदा में लगातार पानी आता रहेगा? कहाँ से आएगा? बिकॉज इफ भोपाल थिंक्स दैट कि नर्मदा से मुझे लेना देना नहीं है, इफ गांधीनगर थिंक्स दैट कि मुझे नर्मदा से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों शहर में पीने की पानी की प्रॉब्लम होगा. 2008 में मैंने एक फिल्म बनाया था. मूर्ति साहब मैं इंटरव्यू करना चाह रहा हूं. आई एम कमिंग टू जस्ट 1 मिनट ओनली, वन लास्ट सेंटेंस. कोलांस को क्या आप जानते हैं? आई वुड लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन हियर. कोलांस को आप में से कितने लोग जानते हैं? वी कैन टेक द क्वेश्चन एट द एंड, बट स्टिल माई रिक्वेस्ट इज कि जब तक हम अर्बन बायोडाइवर्सिटी का जो लाइफ की जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि बर्ड्स इज वन ऑफ द गुड इंडिकेटर्स ऑफ एक्वाटिक एंड अदर अर्बन इकोसिस्टम्स, इन चीज़ों के बारे में अपन को ध्यान देना पड़ेगा. So Murthy Saab has been the member secretary of Madhya Pradesh State Biodiversity Board, among many other responsibilities that he held. But Murthy Saab और मैं दोनों मध्य प्रदेश वेटलैंड अथॉरिटी पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक्सपर्ट के रूप में नामित मेंबर्स थे, और हम वेटलैंड्स की बातें कर रहे हैं. इन्होंने कहा बजट में 30 करोड़ रुपए दिए हैं, वो ज़्यादा है कम है, ये मूर्ति साहब बताएंगे, मैं नहीं जानता बजट के बारे में ज़्यादा. बट उस MP वेटलैंड अथॉरिटी की साल भर में 3 बैठकें होना चाहिए थी. 3 साल हम दोनों मेंबर्स रहे उसके, और उसकी मुश्किल से 3 मीटिंग्स हुई. उसके जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे वो मेरे से पूछते थे कि यार मेरा मंदसौर का लेक कैसे बचाऊं. मैंने कहा पहले मीटिंग तो करो यार, मीटिंग तो हो नहीं रही है, पता नहीं लग रहा है, पैसा नहीं है. सो देयर आर ह्यूज चैलेंजेस एज फार एज conservation of bird habitats are concerned, and wetlands are among the best bird habitats besides many others. I mean, like Sanjay ji said कि छोटे छोटे बगीचे पे करना नहीं चाहिए. Large parks, if you go to London, if you see Hyde Park, if you go to many other places, so उन लोगों ने किस तरीके से cities की green lungs को protect करके रखा है, उस मामले में हमको urban biodiversity की बातें करना है. क्योंकि birds के ऊपर किताबें लिखना डिफ़िकल्ट है, आसान है, बाकी सारी चीज़ें हैं. डॉक्यूमेंटेशन किया हमने, क्योंकि भोपाल में जब बर्ड्स के ऊपर हम किताब लिख रहे थे तो हम पुराने जब चीज़ें ढूंढने लगे तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ जानकारियाँ भोपाल की बर्ड स्पीशीज़ के बारे में या भोपाल की इससे रिलेटेड जो हमको रिसर्च करना था उसमें बहुत ज़्यादा हमको गैजेटियर वगैरह में छोटी मोटी जानकारी मिली. पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आज सुबह नटेश साहब ने भी कहा कि वी आर बैड पीपल दैट वे, इंडियंस वी डोंट डॉक्यूमेंट थिंग्स. देयर आर, व्हेन ही रोट दिस बुक आइकॉनिक ट्रीज ऑफ इंडिया, ही हैड टू डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ ब्रिटिश सोर्सेज. सो कहने की बात यह है कि हमने ये किताब लिखने के बाद में अब इसमें बहुत सारी गति मिली है. नेशनल आर्काइव्स वालों ने हमको कहा कि हमारे को किताब दीजिए. सो अर्बन बायोडाइवर्सिटी की तरफ मैं इसको मोड़ना चाह रहा हूँ डिस्कशन को, और इसीलिए इस सेल्फ इंटरेस्ट से मैंने संजय शुक्ला जी को घेरा, मेरे पुराने मित्र हैं, कि आज यहाँ आए और बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज, ट्रीज, इन सब के कंजर्वेशन के लिए
शासन की तरफ से हम लोगों ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन भारती जी वुड लाइक टू आस्क एंड टेक फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक ऑफ अर्बन बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज that appears to be threatened area. Because 40% of the human population. if I may, मैं चाहती हूँ कि शुक्ला जी से एक क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मुझे भी शायद कभी आगे पता नहीं चांस मिलेगा कि नहीं, मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है कि आप इस बारे में क्या विचारते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अब हमारे जो सिटीज़ हैं कांच के, कंक्रीट के, तो आपका क्या विचार है, क्या हम सिटीज़ को ही एक इकोसिस्टम की तरह मान के, आज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, तो वेटलैंड्स हों, चाहे ओल्ड ट्रीज हों, चाहे हेजेस हों, चाहे क्रीपर्स हों, चाहे डीकॉन्क्रीटाइज्ड हो, आपका क्या विचार है अर्बन बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्पीशीज़ को ठीक रखने के लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या मतलब प्रैक्टिकल तौर से आपको लगता है कि आपका डिपार्टमेंट आगे के टाइम में और अभी कर सकता है, और क्या चैलेंजेस भी क्या दिख रही हैं आपको, और जनरली, ना केवल आपका डिपार्टमेंट, जनरली अर्बन डेवलपमेंट? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट तो एक छोटा सा प्लेयर है इसमें। ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, जिसमें डेवलपर्स, बिल्डर्स, लैंड ओनर्स, प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, सब लोगों के एजुकेशन के इश्यूज हैं इसमें। जैसे आपने कहा ग्लास का उपयोग, ये शुरुआत हुई थी कोल्ड कंट्रीज से, जहाँ पे हीट को ट्रैप करना ज़रूरी था, लेकिन उसकी नकल करते करते, और हमको बहुत सारा जीडीपी बढ़ाना है, ग्लास प्रोडक्ट को भी सेल करना है वगैरह वगैरह, तो अब जहाँ पे गर्म एरिया है वहाँ भी हम पहले ग्लास लगाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर हम एसी लगाते हैं, ठंडा करते हैं उसको। तो इस तरह से ऐसा हमारी सोच में आ गई है। इसमें सब लोग खुश हैं, मतलब मार्केट भी खुश है, एयर कंडीशनर बनाने वाले खुश है, और सेंट गोबेन कंपनी भी खुश है क्योंकि ग्लास उनका बहुत बिक रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। और बिल्डिंग की कीमत भी बढ़ रही है, तो इंजीनियर साहब भी खुश हैं, तो आर्किटेक्ट भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं बेसिकली, है ना। तो ये विन विन सिचुएशन है ये, है ना। तो इसमें एजुकेशन की कमी हर लेवल पे है ये। पर ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अर्बन में हमको दो पार्ट में पहले करके समझना होगा कि हम अभी जो बड़े हमारे शहर हैं, जिनकी मैंने बताया करीब संख्या 15-16 है, और कुछ शहर जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इनको हम एक अलग इकोसिस्टम मान सकते हैं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो छोटे शहर हैं वो ज़्यादा बिगड़े नहीं हैं अभी, और वो इतने छोटे हैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो इनको हम बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं मान सकते एक लार्जर ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बर्ड्स के लिए बहुत तरह के और जो बगीचे हैं। बट ये आगे भी बढ़ रहा है, जैसे अब गाँव में इसका प्रभाव दिख रहा है कि वो शहर की वो नकल करने की प्रवृत्ति है, तो वहाँ भी हम खूब सारा पेस्टिसाइड, खूब सारा फर्टिलाइज़र, खूब सारा केमिकल, दूध से लेकर सब्जी से लेकर हर जगह कर रहे हैं। अभी जो पूरी जो चेन है उसकी बायोडाइवर्सिटी की, इसको हम लोग अभी ठीक से शायद समझ भी नहीं पाए हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस एक बहुत अच्छा एक यूट्यूब पे फिल्म है, उसको कोई भी देख सकता है कि अगर कोई भी एक स्पीसीज़ को हम गायब कर दें तो कितने साल तक ह्यूमन सर्वाइव करेंगे। तो सबका जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, फूड चेन के इशू भी हैं और सर्वाइवल के इश्यूज भी हैं, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो छोटे शहरों में तो नुकसान कम हुआ है, हम लोग उसको ठीक जल्द कर सकते हैं, पर बड़े जगहों पे जैसे दिल्ली के आसपास अरावली को काफ़ी डैमेज कर दिया गया। यमुना की हालत क्या है उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता है। ऐसे ही जो और दूसरे शहर थे, कानपुर है, पटना है, बहुत सारे, मैं सबका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग बराबर ही बौद्धिक क्षमता के हैं, आपको भी सारी बातें पता हैं, मैं केवल उनको फ्लैग कर रहा हूँ कि जो बड़े शहरों में जो डैमेज हो चुका है उसको हम वापस अनडन कैसे कर सकते हैं। तो जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करने में, उसमें बहुत ज़्यादा जो कंक्रीट और एस्फाल्टिंग हो रही है वो एक फैक्टर है ऐसा, क्योंकि वो बहुत हीट होता है जब वो साल के 3, 4, 5 महीने जब वो धूप पड़ती है तो बहुत हीट होता है, और उस हीट को जो इंसेक्ट वर्ल्ड है, जो बर्ड की दुनिया है, वो समझ नहीं पाती है। तो हम जैसे किसी ज्वालामुखी को या किसी वॉल्केनो के पास नहीं जाते हैं ये मान करके कि ये आदमी के रहने की जगह नहीं है,
वैसे ही बर्ड्स और इंसेक्ट धीरे धीरे ऐसे अर्बन सेंटर को ऐसे ही हीट सेंटर मानते हैं और उसको बाईपास करके वो निकलते हैं, इधर उधर से निकल जाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला काम तो ये करें कि डैमेज करने की प्रवृत्ति को कम करें। और जो हम ये मतलब अब छोटी छोटी गाँव की कॉलोनियों में, इनफैक्ट मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि जो हमारे सीमेंट कंक्रीट को सीसी कहते हैं बोलचाल में, सरपंच और गांव के पंचायत सचिव और सब इंजीनियर, सबसे ज़्यादा जो गांव में जो हर साल फंड जाता है नरेगा से भी और अन्य योजनाओं में अनटाइड फंड भी जाता है। आपको शायद हैरानी होगी सुनकर कि लगभग 60 से 70% पूरा पैसा केवल सीमेंट कंक्रीट रोड में खर्च होता है। उसको सीसीकरण कहते हैं, एक नया शब्द बना दिया गया है मध्य प्रदेश में, सीसीकरण। सीमेंट कंक्रीट और करण हिंदी में हम यूज करते हैं जब हम किसी क्रिया को संज्ञा में बदलते हैं तो करण शब्द का उपयोग करते हैं। तो हमने सीसीकरण कर दिया है पूरा। तो ये एक कॉमेडी हो जाएगी, उस पर हम ज़्यादा न जाएं। पर इस तरह से मतलब लगभग वैसे ही लोगों की तरह या पागलों की तरह हम लोग कंक्रीट की सड़क गांव-गांव में, गली-गली में, उसके पीछे थॉट ये है कि अगर मट्टी या बिटुमिन की भी रहेगी तो पानी आएगा तो कीचड़ होगा तो रोड खराब होगा। तो क्योंकि पानी इसको डैमेज नहीं करता और पानी को हम मैनेज नहीं कर सकते स्टॉर्म वाटर को, तो इसलिए सीमेंट कंक्रीट की गलियां बना दो। तो गांव की सारी गलियां अब कंक्रीट की बन रही हैं और शहर के आउटस्कर्ट्स पे भी जितने भी कॉलोनियां बन रही सब सीमेंट की सड़कें बन रही हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? बहुत इजी आंसर नहीं है कि मैं तुरंत बता दूं कि इसका आंसर है, बट इसको समझने की ज़रूरत है कि हम कितना इसको कम कर सकते हैं और कितना सारा हम जो है वो ऐसे जैसे इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स हैं जिसमें पानी सीप कर सकता है, उसको हम यूज कर सकते हैं क्या। बहुत पहले पत्थर की सड़कें गलियां बनती थी और 400-500 पुराने ऐसे सड़कें सेंट्रल एशिया में, इंडिया में कई जगह मौजूद हैं। तो क्या हम उसको हम एक ऑप्शन के रूप में सोच सकते हैं? तो इस प्रकार की एक उदाहरण था ये। ऐसे कितने इशू हैं जिसमें शहर में हमको पॉल्यूशन, स्पेशली ये जो धुआं वाला पॉल्यूशन है गाड़ियों से और अन्य सोर्सेज से, फैक्ट्रियों से हो रहा है, उसको इमीडिएटली हमको चेक करने की ज़रूरत है। दूसरा है एस्फाल्टिंग और कंक्रीट का यूज, उसको हमको कम करने की ज़रूरत है। और हम अनावश्यक जो लाइट यूज कर रहे हैं, बहुत सारा रोशनी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे ऊपर क्या असर होगा ये तो कुछ पीढ़ियों के बाद पता चलेगा कि हम लोगों की आंखें ऐसी रहेंगी या कुछ बदल जाएंगी, भगवान जाने। पर इंसेक्ट्स और बर्ड्स काफ़ी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो बेसिकली देयर इज ए नीड फॉर अर्जेंट I mean addressing the syllabus and approach and teaching of all institutions जहाँ पे वो सारे लोग निकलते हैं जो आगे जाके, चाहे वो MBA हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, वगैरह वगैरह। तो इस पे जब हम काम करेंगे तो जाके बदलाव होगा। I would like to come here and ask you a sub question, बल्कि आप दोनों से, कि आप लोग मतलब सरकार बहुत मशहूर है कि डेटा रखती है हर चीज़ में, हमारे सारा मतलब आधार बीइंग द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड येट हमको वी डोंट नो, वी डोंट हैव a full list of all the trees in urban areas, or we don't have database कि कौन से species सिर्फ यहाँ मिलेंगे और कोई नहीं मिलेंगे। कई जगहें ऐसे होती हैं जो वो बर्ड मिले या कुछ मिले और वहीं मिलती है और वो निश स्पीशी कहलाती है, और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो जाए तो मान लीजिए स्पीशीज़ लॉस है। तो मैं ये पूछूंगी आपसे, आपने पन्ना में भी और आप ऑफ कोर्स शहरी विकास में हैं, तो आपका मतलब ये डेटा जब इन्वायरमेंट पे हो, नॉन प्रॉफिट मतलब टेंजिबल पैसे की बात नहीं हो या इस चीज़ पे हो, तो डेटा क्यों नहीं ढंग से रखा जाता और क्यों नहीं हमारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, क्यों हम इतने पीछे छूट गए हैं? स्पेशली मैं बोलूँगी ट्रीज, सिटीजन साइंस, डेटा। लेकिन संक्षेप में नहीं, रूरल में नहीं मैं पूछ रही, अर्बन। हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ। Because Project Tiger is doing fine. I'm talking of outside Project Tiger. What you are telling, I could get what you say. जी। कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इश्यू है, स्पेशली गवर्नमेंट का, because I was also a मतलब part of government before last 4 years, कि government doesn't give much of importance for an institutional memory. कि ये रहता है कि यदि मान लीजिए कि मैं आज किसी पोस्ट पे नया पहुंचा हूं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम माई प्रेडिसेसर
जहाँ उन्होंने छोड़ा चीज़ों को, उन्होंने लेट्स से कि ही स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2 तक, तो मैं 2 के बाद करने के बजाय मैं कोशिश करूँगा उसको फिर 0 पे ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपना कुछ अलग से कुछ दिखाना है। यदि इस प्रकार की एक इश्यू में हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सके और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को हम इम्पोर्टेंस दे सके, क्योंकि फाइनली इट बिकम्स रीइन्वेंटिंग द व्हील। ये कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास क्षमता अच्छा है, आप प्राइम टाइम पे हो, बेटर यू गिव योर एनर्जी फॉर टेकिंग द थिंग्स फर्दर रेदर दैन रीडूइंग व्हाट अर्लियर समबडी हैज़ डन। तो उस हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होनी चाहिए। तो उसी जगह पे मैं 2 चीज़ें मतलब बताना चाहूँगा। एक तो मध्य प्रदेश की जितने वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनका हमने अलग से एक डॉक्यूमेंटेशन कराया, फानल का, मतलब वाइल्ड स्पीशीज़, फ्लोरल स्पीशीज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। सिमिलरली ऑल द एंडेजर्ड बर्ड स्पीशीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, उसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन 36 मतलब बर्ड्स का, वो क्या बोलते हैं आप ही के मतलब नेचर वॉलंटियर की तरफ से ही वो काम हुआ। सिमिलरली भोपाल की जो लेक की मैक्रोफाना है उसका भी एक डेटाबेस क्रिएट कराया। एंड देन बिसाइड्स दैट फॉर एंटायर मध्य प्रदेश वी डू हैव ए बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान फॉर डिफरेंट 9 सेक्टर्स। वो सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा बाकायदा मतलब अप्रूव्ड है, लेकिन उस चीज़ को मेन स्ट्रीम कैसे करना है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू। अनदर इम्पॉर्टेंट इश्यू इज दैट कि जैसा कि अर्बन बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, हम अपनी जो डेवलपमेंटल प्लानिंग है उसको सस्टेनेबल कैसे बनाएं। इफ वी आर गोइंग टू ब्रिंग ओनली अ सिंगल वर्ड इनटू द एंटायर डेवलपमेंट प्लान, ये सस्टेनेबल हो ecologically and economically. I think we should both move the ways to the next speaker. Yes. I am only just concluding it, telling Yes, ki please. we have to give an importance for ecological foundations so that a sustained development can happen. यदि इन मतलब शब्दों को अपना डेवलपमेंटल टर्मिनोलॉजी में हम लगातार ला सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, certainly India can go back to the previous world जहाँ पे हम बेहतर रहें। नेक्स्ट मतलब शुक्ला जी, अब आप ये दोहराइए कि कैसे करिएगा आप, इफ यू, हाउ इज दिस टू बी डन, हाउ विल यू एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज environmental memory and use it. And I'll just give you one example of how Gurgaon, जो कि हम सब कोसते हैं और हंसते भी हैं, they have managed a beautiful biodiversity park. But how are you trying to, think of this challenge? इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो हमारे एवोल्यूशन से साबित होती है कि अगर हमने किसी प्रॉब्लम को पहचान लिया है ठीक से, तो हम उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। तो नाउ दैट वी नो द प्रॉब्लम, सो देखिए सभी शहरों में यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी शहरों में कॉलेजेस हैं, और सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी के डिपार्टमेंट होते हैं। बहुत आसानी से ऐसा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें न केवल उस शहर के आसपास के पूरे एरिया के जितने प्रकार के जो इश्यूज हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो डॉक्यूमेंट होते रहें। वहाँ की जो फैकल्टी हो उनकी जिम्मेदारी रहे कि वो अपडेट होता रहे, पब्लिक डोमेन में रहे, वो उनके पोर्टल या वेबसाइट पर रहे ताकि उसको लोग देख सकें, पढ़ सकें, फोटोग्राफ भी रहे। और वहाँ के स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट हों, जो कि कई बार हमें बीएससी, एमएससी के डिग्री के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट रियल इशू से जुड़े होने चाहिए। अगर हम इस तरह के प्रयास करें, इसके अलावा भोपाल जैसी जगह में एक IIFM भी है जिसमें और एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ है कि वो फॉरेस्ट और नेचुरल और रूरल इश्यूज़ को भी समझता है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी से। तो सारे अपने देश के हर शहरों के ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी या नेचुरल इस तरह के साइंसेस वाले सब्जेक्ट हैं, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ पे इसके सेंटर्स बनने चाहिए, वहाँ पे इसके चेयर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट हो, तो हमारा एक बेसलाइन तैयार होगा पहले, जो कि 1-2 साल 4 साल में हो सकता है हो जाए पूरा। और फिर इसमें जो इम्प्रूवमेंट होगा वो अपने आप कैप्चर होगा जब हम वहाँ की लोकल बॉडी काम करेगी, नगर निगम काम करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करेगा, अर्बन डिपार्टमेंट काम करेगा, तो सारे काम रिफ्लेक्ट होंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्प्रूव हो रही है, कितनी स्पेसीज बढ़ रही है, कितना उनका जो हैबिटाट है वो इम्प्रूव हो रहा है, और एक किसी न किसी प्रकार के
मुझे इसका नॉलेज नहीं है, पर मैं पूरा भरोसा है कि इसके ऐसे प्रॉपर इंडिकेटर होंगे जो बताएंगे कि चीज़ें अब सुधर रही हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम बिना एक्स्ट्रा कोई बहुत बड़ा बजट मांगे हुए इस काम को कर सकते हैं। So Bharti ji wanted you to ask, so I am just chipping in. She said कि गुड़गांव में बायोलॉजिकल वो बायोडायवर्सिटी पार्क बना है, दिल्ली के पास में हमारे दोस्त लोगों ने बनाया है. So can we ask, मतलब I am just beyond my authorship, I am going to ask to the mighty Principal Secretary of Urban Development in Madhya Pradesh, can we have a large biodiversity park in Madhya Pradesh in any of the cities during your tenure? Not any, we will have in most of the cities. वाह क्या बात है. इसको हम पूरा कंक्रीट शेप देंगे एंड आप भी रहेंगे उसमें, हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे और मैडम को भी शेयर करेंगे, हम बताएंगे दिल्ली भेज करके. हाँ रिकॉर्ड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, बिफोर क्वेश्चंस आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. हालांकि बोलना नहीं चाहिए बिफोर क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन आई विल जस्ट गिव द लास्ट वर्ड to Abhilash ji with a very brief question कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ with this audience, this team and this book, obviously there's a very important role for citizen science. तो जैसे कि दिल्ली में we are actually making a bird atlas और I think भोपाल में भी शायद ऐसी बनी हुई है, but citizen science बहुत ज़रूरी है. सिर्फ scientists नहीं, लेकिन अब citizens भी एक scientific pursuit में मदद कर रहे हैं इस विषय पे. तो आपका क्या विचार है? एंड राइट आफ्टर दैट क्वेश्चंस. So definitely we need to collaborate with the experts, with the scientists, and we as citizens, because I wrote this book as a citizen of Bhopal. I came here about 30 years ago and I thought there was no literature on birds, so I tried to do this book. So I am a citizen and I would definitely like to collaborate, and there have been very recent instances in which Mr. Murthy also described. There was a smart city location in an area which had large number of trees, and it was already a beautiful smart area in Bhopal. And there are some people sitting here in this room who brought out details of that number of trees. They conducted tree walks and tried to save that area, and ultimately the then Chief Minister had to intervene. Mrs. Nirmala Buch also went around in the small colonies and tried to protect the trees, and smart city location was eventually shifted. So citizens have definitely very important role, not only in conserving birds and wetlands, but also because ultimately what happens is that suddenly a metro comes without asking you, suddenly a smart city comes without asking you, and they say, government says that the citizens have been taken into confidence. So citizens and science must marry together to protect this society is my final take. Thank you. I think first question goes here. फिर ऐसे ही कर के क्वेश्चंस ले लेते हैं. 5 छोटे. Hello, namaste sir, namaste ma'am. I had a question. It's kind of a two-parter, but you're all, sorry, I'll keep it as brief as possible. You're all thought leaders with regards to climate change and activism with regards to the importance of saving the environment and not just preserving it for the coming generations, which is of course our duty, but also ensuring that we get to live in livable times. I think that so the question is to the author or to dad? To all of you. All of you. Oh. To all of you. But what I'm asking is, I think as a country in the global south, it is very important for us to also acknowledge the importance of the kind of impact that countries of the global north, the US, the UK have on countries like us. The fact that we are still their primary waste management system, for the lack of a better word and for as crass as I sound about it, we are still dealing with the majority of their fashion waste, of their technological waste, of their actual rubbish, right? So when we think about it in terms of, you know, something like the Paris Agreement and how all countries are supposed to be liable. Question I'm just getting to it. I'm just, yeah. It's not fair to other people. I'm so sorry. So what I'm asking is, how do we balance this accountability of the global north with progress in the global south? Because it is very important that Indian citizens have access to electricity and have concrete homes and have safety and security. But it is also very important that we tell the Koch brothers in the US to stop mining and spilling oil in the sea. So as thought leaders in this area, I was hoping you'd have some clarity.
This is quite a vast subject, so to say. I would, and each one of us would like to respond to you, but like you said, garbage cleaning and everything, the dumping, you know that Indore is the cleanest city for the 7th year. I belong to Indore. Sanjay Shukla ji was municipal commissioner. He started all these things. So it is all about the citizens' approach, and we need to be very, very responsible citizens. जैसे हम लाइट बंद करना है, हमको टीवी चले, यदि मैं वल्लभ भवन में जाता हूँ तो मैं कई बार पैदल चल के सीढ़ियों पे से जाना पसंद करता हूँ. So we need to conserve energy. We need to. So if we are responsible citizens and if we start conserving water at home, बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि एनवायरनमेंट बचाने के लिए क्या काम करते हैं. तो मैं कहता हूँ कि आपके घर में 4-5 लोग हैं. बोले हाँ है. तो मैंने कहा रोज 1 बकेट पानी बचाया करो रोज, ईच पर्सन. रोज की 5 बाल्टियाँ बचेंगी, मल्टीप्लाई इट विथ 30 days, मल्टीप्लाई इट विथ 365 days एंड यू हैव गॉट वाटर कंजर्व्ड. सो द पॉइंट इज व्हाट मूर्ति साहब वाज सेइंग कि नर्मदा जी में पानी नहीं है, गंगा जी की हालत खराब है. सो वेयर विल द वाटर विल गेट फ्रॉम. सो स्मॉल एफर्ट्स, बेबी स्टेप्स विल ऑल्सो हेल्प. सो बाकी रेस्ट भारती जी वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड. और No, I won't respond. I don't think any of us will respond because it's a conversation. All I want to say is that actually we should be bothered about the waste that we are creating, the fashion waste and the tech waste, because India actually doesn't anymore take those wastes. Other developing countries do. But we should really be bothered about what we are doing. I just want to, because there were about 20 hands there. Madam, We'll have last 2 questions. No, I would like you to ask other questions. बहुत लोग हैं, it's not नमस्ते, fair. मेरा नाम नम्रता नागर है. मेरा सवाल शुक्ला सर से. सर, पिछले दिनों लोक रंग हमारे आयोजित किया गया और वो इस पर आधारित था कि लुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों पे. तो बात हुई कि शादियों में आप डीजे बजाते हैं, त्योहारों में तो वाद्य यंत्र लुप्त हो रहे. जैसा सर ने अभी बताया कि हम ध्वनि प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तो उससे बर्ड्स को नुकसान हो रहा है. तो सर, ये जो डीजे कल्चर है हमारे यहाँ, और जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि इतने बजट हमारे पास आया है, तो सर ये जो बजट माननीय हमको भेजते हैं, इनके आने वाले दिन तो पूरे दिन रैलियों में डीजे ही बजते रहते हैं. तो ये जो डीजे कल्चर है बहुत बड़ा ध्वनि प्रदूषण है, इस पर हमें इसको कैसे नियंत्रित करना चाहिए? थैंक यू. अभी अहमदाबाद में कोल्ड प्ले हुआ था और सारे बच्चे, सारे लोग आपकी पीढ़ी के गए थे वहाँ. मेरी पीढ़ी का कोई नहीं गया था शोर मचाने वहाँ पे. हाँ, fully agree with her. I do not endorse DJ. I never use it. I never encourage it. Thank you. नहीं, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो ये नालियाँ हमने बंद कर दी हैं और नालियों को बंद करके सीवेज पाइपलाइन डाल दी है, तो पक्षियों के ऊपर इसका कितना असर पड़ा है? क्योंकि वो नाली का पानी ही पी करके पक्षी जो है अपनी प्यास बुझाते थे. सब जगह तो वाटर बॉडी नहीं रहती. दूसरा एक सजेशन, बायोडाइवर्सिटी वाले आप लोग हैं, तो उस बोर्ड को मैं ये देना चाहूँगा कि जब हम लोग आपके रिजर्व फॉरेस्ट को देखने जाते हैं तो जो गाइड हैं वो हमको फ्लोरा और फौना दोनों के बारे में बताएं, पक्षियों के बारे में भी बताएं और रुचि जागृत करें. हम तो जाते हैं तो हमको शेर दिखाने के चक्कर में पड़ा रहता है, पक्षी दिखाता नहीं, पेड़ के बारे में पूछो तो वो बताता नहीं. तो जब तक ये नॉलेज नहीं बढ़ेगा लोगों को, बायोडाइवर्सिटी का जो वो नहीं रह जाएगा. ये जो किताब लिखने का जो महायज्ञ जो हमने किया है, जिसमें हमारे बहुत पैसे लग गए जेब से, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आप लोग इस किताब को खरीदिए. मेरे लिए मत खरीदिए, लेकिन ज्ञान जहाँ से मिल रहा है और उसी से कंजर्व. जब तक सोसाइटी सरकार के ऊपर गलत चीज़ों के लिए प्रेशर नहीं बनाएगी, जो हमारा नेचर वॉलंटियर्स नाम की जो हमारी संस्था हम इंदौर में चलाते हैं, उसके अध्यक्ष पद्मश्री बालू मुंडे साहब हैं, संजय जी के भी मित्र हैं, मूर्ति साहब की भी. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का टैगलाइन ही ये है, वी आर एन इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटली रेस्टलेस पीपल. छपा हुआ है इसमें. सो ये हम 92 से कर रहे हैं. सो आइडिया इज दैट वी शुड ऑल कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. फॉर तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लेख लिखा है कि बी सेल्फिश टू सेव बायोडायवर्सिटी. जब तक हम अपने लिए नहीं जीने की बात सोचेंगे, कल की तारीख में नगर निगम ने यदि भोपाल के 3 दिन का आपके घर का पानी बंद कर दिया तो पता लग जाएगा कि पर्यावरण की स्थिति क्या है. बट वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. We want that, we think that water is limitless, so we don't want to conserve it. Okay, thank you so much, sir. Thank you everyone. I am actually from a small village nearby, about 100 kilometers. We are all talking of urban centers. And you mentioned that light pollution is not there in rural areas. I beg to differ, sir. In fact, I might be a little politically incorrect. The fact of the matter is that when you are providing free electricity, free water,
there is absolutely no control. You'd be surprised in my village, not a single bulb is switched off 24 hours. जब तक वो फ्यूज नहीं होता तब तक स्विच ऑफ नहीं होता. आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही. और पानी में नल की बात आप करते हैं, पानी बहता है और उसके बाद से मच्छर बढ़ गए. पहले कोई मच्छर नहीं था. So these are things that need to be. देखिए साहब, मैं समय की बहुत कमी है, लेकिन मेरे को ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आज वेटलैंड डे है. पिछले वेटलैंड डे पर रामसर साइट की चीफ इंदौर आई थी फ्रॉम जिनेवा, एंड शी वाज विथ मी ऑन सिरपुर दिस थिंग, बिकॉज वहाँ पर मेन फंक्शन हुआ, मोहन यादव जी आए, सब लोग आए, 3 दिन का बड़ा फेस्टिवल हुआ. वहाँ एक फिल्म दिखाई गई, वो सब आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, सब लोगों को बहुत जरूरी. आप बैठ जाइए. आबिद सुरती नाम के एक कार्टूनिस्ट हैं बम्बई में. उन्होंने जब ये सोचा, ही इज अ कार्टूनिस्ट, ही कैन कीप ड्राइंग कार्टून्स एंड बी हैप्पी विथ दैट. उन्होंने घर घर, जब उनको पता लगा कि उनके घर का जो नल लीक हो रहा है और वो प्लम्बर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए क्या करें. एक नल दुरुस्त करने के लिए कोई प्लम्बर नहीं आ रहा है, लेकिन पानी बहुत बह रहा है. ही हैज, देयर इज अ फिल्म ऑन दैट, पूरे देश विश्व भर में बताई जा रही है. उस आबिद सुरती व्यक्ति ने 2-3 प्लम्बर्स की टीम साथ में ली, बंबई की स्काई स्क्रैपर्स में हर फ्लैट पर जाकर नॉक करने की बात करी. नॉक करके पूछा कि हेलो, हाउ आर यू, दिस दैट, इज देयर योर टैप लीकिंग. लोगों को लगा कि ये कोई गुंडा बदमाश अंदर घुस जाएगा, उसने काट दिया. कुछ लोगों ने उनको डरा धमका के बाजू कर दिया. बट विद इन 6 months Mr. Abid Surti could repair millions of taps in the houses, and what a job he has done. So कहने का मतलब यह है कि where there is a will there is a way. So Abid Surti as a cartoonist, उन्होंने अपने साथ में प्लम्बर्स की टीम ली, सब फ्री में काम किया लोगों के घर. तो हमारे घर में जब नल लीक होता है तो हम उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि ठीक है पानी तो खूब आता रहेगा, संजय शुक्ला जी का अर्बन डिपार्टमेंट है, पानी भेजता रहेगा. पर आर वी रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन डीड्स, ये इशू है. बट थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. थैंक यू. भारती जी. Thank you so much once again to all of our esteemed. Yeah, of course. Yeah. No, please. I just wanted to thank everyone. आप सबको बहुत शुक्रिया. Sorry मैंने इतना टाइम नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से वो ऐसे घूर घूर के देख रही थी मेरी ओर, आपकी ओर नहीं देख रही थी, तो मैं प्रेशर के दबाव में आ गई. हालांकि सरकारी प्रेशर के नहीं आती, लेकिन यूथ प्रेशर में आ गई. बट थैंक यू वेरी मच कि आप ये जो बात हुई. थैंक यू एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. This book is a very important book. Yeah, and Mama, I would like to say we could just keep listening to you all because the conversation is so interesting, and we could have a lot of more questions if the time constraint wasn't there. On this wonderful occasion, I would, because urban biodiversity की बात हो रही है, भारती जी को भी बताना चाहूँगा. भारती जी बहुत लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट है दिल्ली की. बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में बना. मूर्ति साहब बाद में उसके मेंबर सेक्रेटरी बने बायोडायवर्सिटी बोर्ड के. लेकिन अर्बन बायोडायवर्सिटी के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जो मैंने पहली बार देश में इंदौर में करी. और काफ़ी अर्बन मैनेजर्स को, स्मार्ट सिटी के सीईओज को उसमें बुलाया. और आई मस्ट से ऑन फ्रॉम दिस फ्लोर कि बहुत सारे CEOs ऑफ स्मार्ट सिटीज़ वाइल गोइंग आउट ऑफ दैट हॉल, उन्होंने कहा मुझे कि मेरे को हम लोगों को पर्यावरण अब समझ में आ रहा है. सो पर्यावरण समझना, उसको प्रोटेक्ट करना यदि एक कलेक्टर या स्मार्ट सिटी के CEO के हाथ में है, बट इफ ही डजंट अंडरस्टैंड, सो देयरफॉर दिस इंदौर डिक्लेरेशन, ए कॉल फॉर एक्शन ऑन अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन. आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर संजय शुक्ला टू प्लीज एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम माई साइड. Can we give them a huge round of applause? This is 2-year-old document, but nevertheless it is always we are talking about urban biodiversity. Thank you so much to all of our amazing speakers for this session. It was really an important topic and it was really an engaging discussion. Can we give them a huge round of applause once again for this amazing conversation? Now our speakers have a question for the audience, and if you know the answer, just please raise your hand and you'll receive an enriched life by Dale Carnegie. So you will ask the question. No, you'll ask. Oh, there are so many questions coming to my mind. But who is among the best well-known ornithologists of the country? Please raise your... Yeah. So the prize goes to Mr. KVS Chaudhary. Please come up on the stage to receive your prize.
Sorry, I wanted the young man to say this thing, but the question should have been more difficult. The question. Chaudhary Sahab, आइए. Chaudhary Sahab was Municipal Commissioner of Bhopal. So, an IAS officer, you can give this book to him. He is an avid reader. Thank you so much. Thank you. As we conclude this enriching session, I would like to request Dr. Meera Das ji, a founder member of the society, to please come up on the stage and present our esteemed speakers with a memento as a token of our gratitude. The painting that you see here is by Padma Shri Bhil artist Bhuri Bai ji, depicting the connection between nature, earth, the human being and the environment, and the circularity that inherent and imperative to our existence. Can we give them a huge round of applause? Thank you once again to our incredible speakers, and thank you to the audience. And we'll see you in the next.